Okay. So, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. So, since we have completed till here, that is a muscle in the upper extremity, all this is deltoid triceps, triceps, and all. So today we will discuss about muscle lower extremities. ओके, मसल ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। तो आज हम लोग ये मसल ऑफ, हम लोगों ने ऊपर का जो जो मसल्स था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अभी ये सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। मसल ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब जो नीचे का जो मसल्स क्या क्या होता है, हम लोगों ने ऊपर पार्ट का कर लिया। अभी हम लोग नीचे का जो जो मसल्स है वो क्या क्या बाकी है, मतलब मैं अभी डिस्कस करूंगी तुम्हारे के साथ। Okay, so this is the muscle you will find in the lower extremities. That is gluteus maximus. Okay, this is the gluteus maximus that you will find in the lower extremities. So this gluteus maximus, they helps in what? They helps in movement of your hips and thigh. Okay, this is your hips and thigh. Okay, it helps you hips and thigh. You know, na, this is your hips, your waist, and your thigh. This portion, this area. So this muscle, that is the gluteus muscle, they helps you in movement of your hips and thighs. And also you will find that they also helps you in maintaining posture. Posture, like what to say, sitting, standing, and also as well as climbing the stairs, climbing up the trees, and all those, you are able to perform all those things. Because of what? Because of the gluteus muscle that you will find in the lower extremities. तो ये जो ग्लूटियस मसल है हम लोग को नीचे में मिलता है। और ये जो ग्लूटियस मसल है कैसे मदद करता है हम लोग का कमर, ये कमर और जो थाई एरिया है, ये जो बड़ा वाला है, ये वाला पोर्शन जो है हम लोग को हिलने में मदद करता है। जैसे कि सीढ़ी उठना, सीढ़ियों में उठना, जैसे कि बैठना, ठीक है, वगैरह। और जब हम लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो उस वक्त भी ये मसल हम लोग का मदद करता है, वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रेस्पॉन्ड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट इज क्वाड्रिसेप्स। सो दिस रेड कलर पोर्शन ना, दिस रेड कलर, तो ये जो लाल वाला जो कलर है, रंग है, वो क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो क्वाड्रिसेप्स है ये कहाँ पे होता है? ये थाई एरिया पर होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? आगे में होता है, फ्रंट, जो थाई एरिया का जो आगे वाला पोर्शन में है, यू विल गेट योर quadriceps muscle at the front part of your thigh. Understand? And this muscle, they helps you in what? They helps you in standing straight, which is like this. This is your knee, so it is above your knee, so it helps you in uh, I mean standing straight. And when you walk, they suppose this is your leg, they do like this, na? Left right, walk in that manner, na? So the quadriceps, they helps you in walking, straightening your leg. You can straighten your leg like this. Suppose this is your leg. Okay, so when you stand, what happens? Your legs become straight, right? So in that thing, it helps you in that. तो ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, मान लेना कि ये दोनों का पैर है। ठीक है, ये जो क्वाड्रिसेप मसल है इन दोनों से, मान लेना कि ये थाई है दोनों का। ठीक है, और ये जो दो एरिया है इसको क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं। और ये कैसे होता है? जब तुम लोग चलते हो, ठीक है, और जब खड़े होते हो, ठीक है, तो उस वक्त ये क्वाड्रिसेप्स मसल जो है हम लोग का मदद करता है। ठीक है, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस मसल? यस, Yes, ma'am. ओके ओके। नेक्स्ट इज hamstring. Hamstrings, all this area, you will get this hamstring muscle at the back side of your thigh. Okay, front side of your thigh was quadriceps, at the back side of your
thigh, what muscle you will find? Hamstring. So all these are hamstrings. This one, all this. All these muscles are together. If we combine together, they are known as hamstrings. Hamstring muscles. And this hamstring muscle, they helps you in what? They helps you in extending your thigh. That is, in making by making your thigh straight like this, and also bend your leg like this. You can bend. You can bend like this. This is known as bend. Okay, bend. This is bend. This is straight. Okay. Flex, flex, extend. Flex, extend like this. This is flex. This is extend. So like that. You imagine in that manner. तो ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है हम लोगों का कैसे मदद करता है? ये मतलब थाई एरिया, जो फ्रंट एरिया मतलब आगे में जो है वो क्या था? क्वाड्रिसेप्स ना। और जो पीछे साइड में जो है वो मसल का नाम क्या है? हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं इसको। तो ये कैसे मदद करता है हम लोग का हैमस्ट्रिंग मसल्स? हम लोग का थाई एरिया, ठीक है, मान लेना ये तुम्हारा लेग है, थाई एरिया एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब ऐसे, ठीक है, सीधा होना। और सीधा होना, और बेंड मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा मतलब ऐसे करना, ठीक है, समझ में है? तो इस मतलब ऐसे मतलब मदद करता है हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल्स, इस तरीके से हम लोग का मदद करता है, ठीक है, समझ में है? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हैमस्ट्रिंग मसल्स, ऑल दिस एरियाज आर नोन एज हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये सब एरिया No, ना, ये ma'am. Repeat, ma'am. I am joined now. यू आर जॉइन ना। Yes, ma'am. Repeat, ma'am. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अप लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब तुम लोग का जो नीचे में तलत में क्या क्या मसल्स है, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग का थाई, थाई पता है ना हमीदा? थाई, Thigh. थाई, THIGH, थाई, पता है कि नहीं? No, ma'am. नो। Yes. दिस वन, कैन यू सी दिस? हाँ, सो दिस एरिया इज नोन एज थाई। ओके हमीदा, Yes, ma'am. ये जो एरिया Thigh. है ना, ये जो एरिया है, जो दो दांगोर वाला साइज है, ठीक है, उसको बोलते हैं थाई। थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला अलग है, ठीक है, और ये जो थोड़ा बड़ा वाला यानी कि थोड़ा दांगोर वाला उसको बोलते हैं थाई, ठीक है, समझ में है? Yes, ma'am. उसको बोलते हैं थाई। तो ये जो आगे आगत आगत जो वाला मसल है उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। और ये जो पीछे पीछे वाला जो मसल है उसको बोलते हैं थाई। ये थाई एरिया में ही होता है, ठीक है हमीदा? पीछे में जो थाई है, मतलब पीछे में ये मसल होता है, थाई का जो पीछे वाला साइड में ये इसको मिलता है, इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, बाइसेप, ठीक है, ये सब बाइसेप्स फीमोरिस, ये सब नाम कुल मिला के उसको हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं। तो ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है हम लोगों का कैसे मदद करता है? हम लोग का जो थाई एरिया है, ठीक है, उसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा करने में भी मदद करता है, और ऐसे सीधा करने में भी मदद करता है। क्या समझ में आया अभी हमीदा? Yes, ma'am. ओके Thank you, ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट मसल इज tibialis anterior. So this is tibialis anterior, this portion जो फ्रंट एरिया में मिलता है ना उसको बोलते हैं tibialis anterior, ठीक है। तो ये जो tibialis anterior है हम लोगों का कैसे मदद करता है? मान लेना ये तुम्हारा पैर है, ठीक है, तुम्हारा पाँव। तो ये सोल ऑफ द फुट बोलते हैं, ये जो है ना, जब तुम लोग जो जमीन में रखते हो, ठीक है, मान लेना ये जमीन है, ठीक है, मान लेना ये जमीन है, और तुम लोग कैसे खड़े होते हो? ऐसे पूरा ऐसे जमीन में ऐसे टिकते हो, है कि नहीं? तुम्हारा पाँव ऐसे रखते हो, है कि नहीं? तो ये सोल ऑफ द फुट मतलब ये जो जमीन में जो तुम लोग रखते हो ना, इसको बोलते हैं सोल ऑफ द फुट,
तो ये tibialis anterior कैसे मदद करता है? सपोज ये जमीन है, ठीक है, मान लेना ये जमीन है। जब तुम लोग ऐसे पाव उठाते हो कि नहीं, तुम लोग कभी कभी पाव, तो ये उठाने में मदद करते हैं, ये tibialis anterior. Okay, so this tibialis anterior muscle you will find in the front part of your leg, that is just downside of your knee. And this tibialis anterior helps you in what? Raising your foot. Means you imagine that this is your foot or feet. Okay, so suppose let's say you are keeping your foot on the floor. So you imagine that this is the floor, and when you stand up, what happens? Suppose this is your sole of the foot, so obviously you will touch the foot. Obviously you will touch your foot on the ground. It's not it. And sometimes what happens? You want to raise your foot. It's not it. So you will do like this. You will raise in this manner. So the tibialis anterior, they helps you in raising up. Okay. Even when you walk, जब तुम लोग चलते हो, तुम लोग उठाते हो कि नहीं, तुम लोग का पाव उठाते एक साथ उठाते हो, राइट लेफ्ट ऐसे करके उठाते हो कि नहीं, तो एट दैट टाइम इट हेल्प्स यू. जो ये tibialis anterior है, जब तुम लोग चलते हो, when you walk, what happens? Tibialis anterior, when you walk, you raise up your sole of the foot now, and after that only like you walk right left. It's not it. So in that way, tibialis anterior helps you in doing that. Okay, are you clear everyone about this? Yes, ma'am. Okay. Okay, the last one is soleus. So soleus you will find here at the back side of your feet, of the leg. I mean, at the back side of your leg, you will find this soleus. Okay, you will find at the back side of your leg. Okay, तो ये जो सोलियस जो है, हम लोग का पीछे तरफ में मिलता है, हम लोग का पाव का जो पीछे तरफ में हम लोग को मिलता है, ठीक है, सोलियस. Okay, so this soleus helps in what? I mean, when you walk, you used to maintain posture, na, that is standing straight. So in that way it helps you. Understand? तो ये जो सोलियस मसल है, हम लोगों का कैसे मदद करता है? जब हम लोग चलते हैं, जब हम पोस्चर होता है कि नहीं, सीधा होना, तो उस वक्त ये सोलियस मसल जो है हम लोग का मदद करता है. ठीक है, समझ में आया सोलियस मसल एवरीवन? यस. Hello, yes, ma'am. हाँ, हिमाश्री. हिमाश्री, यस, क्या हुआ? मैम हाँ हाँ, what हिमाश्री? चैट बॉक्स में लिखो, तुम्हारा आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे. Master, you write in the chat box. I can't hear you. Yes, anyone else? Hamida, also you were saying something. Hamida भी कुछ बोल रहा था. Hamida, Ma'am, ठीक से नहीं समझा. Okay, कौन सा वाला पोर्शन हिमाश्री? कौन सा वाला पोर्शन हिमाश्री अच्छे से समझ में नहीं है? हिमाश्री, कौन सा वाला पोर्शन समझ में नहीं आया? Soleus, okay. Okay. Okay, so this is soleus. Soleus muscle you will find here at the back side. Okay, this is the what is it? Lateral side. Lateral side means sideway view, and this is the back side view. That is the posterior view. जो पीछे में कैसे है दिखने में, उसको बोलते हैं मतलब posterior. ठीक है, जो अगर हम लोग पीछे तरफ देखने से ये सोलियस मसल यहाँ
इस साइड पे मिलेगा, लेकिन ऐसे ऐसे साइड में देखने से इस तरफ में मिलेगा ये सोलियस मसल। ओके, तो ये जो सोलियस मसल है हम लोगों को कैसे मदद करता है? हम लोगों का मतलब जब पोस्चर पोस्चर मतलब जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, चलने में, और जब हम लोग खड़े होते हैं हम लोग पोस्चर देते हैं कि नहीं, अच्छे से पोस्चर मतलब सीधा वाला पोस्चर जो देते हैं, तो ये सोलियस मसल जो है हम लोग सीधे खड़े होने में ये मदद करता है, ठीक है। दिस सोलियस मसल यू विल फाइंड एट द बैक साइड, at the back side of your leg. If you see from the back side, you will find in this manner. If you will see from the sidewise, you will find in this manner. And this soleus muscle, how it helps you? It helps you in maintaining your posture. That is, when you walk, when you stand up. So in that way, they will help you the soleus muscle. Okay, समझ में आया अभी हिमाश्री? हिमाश्री, ओके। कि हमीदा कुछ बोल रही थी, तुम क्या बोल रहे थे? No, ma'am. हाँ बोलो। No, ma'am. Confusion. No, ma'am. Confusion. और नो Not कंफ्यूजन। confusion. ओके, Yes, एनीवन ma'am. एल्स? एनीवन एल्स who's having doubt in muscle part? No ना? ओके ओके, इन एनाटॉमी सेंसरी ऑर्गन्स till where I have completed. जो एनाटॉमी में सेंसरी ऑर्गन्स है ना तुम लोग का, कब तक कहाँ तक मैंने सिखाया तुम लोग को, याद है? रुको मैं दिखाती हूँ। Okay, can you see the screen, everyone? दिस इज एनाटॉमी ना, ये एनाटॉमी पार्ट है। सब लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ, Yes, ma'am. ओके, टिल वेयर आई हैव कंप्लीटेड सेंसरी सिस्टम। यस, एनीवन? हैव आई कंप्लीटेड दिस? क्या मैंने ये वाला कंप्लीट किया, बेसल सेल? No, ma'am. These are नो। not complete. ओके, व्हाट अबाउट दिस गस्टेटरी सेल्स? ये सब कंप्लीट कर लिया मैंने। थोड़ा ऊपर लीजिए तो। ये हाँ, इधर इधर से इधर कौन- याद है कि नहीं? ठीक है, नोज तो कंप्लीट कर लिया मैंने नोज। हाँ मैम, टेस्ट तक गया था वो टांग वाला। टेस्ट ना, अच्छा डेट में। अच्छा, ठीक है, तो मैं आज यहाँ से शुरू करूंगी, ठीक है। हाँ, ये दिस वाला। एनाटॉमी है। ओके ओके, सो दिस इज योर टंग। सो द टंग, I mean you can taste with the help of your tongue, right? So this taste
Taste comes from a Latin word which means taxere. Okay, taxere is a Latin word. Taxere means what? To touch, to estimate. Estimate means what? To guess whether it's this or that. And next is judge. Judge means not that moral values judge. Judge means whether it's tasty or not. So it comes from that. Okay. And in the tongue, what will you find? You will find that there are around 10,000 taste buds. I mean, in different parts of the tongue, you'll be able to feel all this bitter, sour, salty. So it is divided into all those parts, all these parts. And in the tongue you have got 10,000 taste buds. ओके, तो ये तुम लोग का जिब्बा में टंग पे क्या है, मतलब टंग मतलब टेस्ट, तुम लोग टेस्ट कर सकते हो, है कि नहीं? तो टेस्ट ये लैटिन वर्ड से आता है, वो है टेक्सचर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है छूना। उसके बाद कुछ वो एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब क्या बोलूं, एस्टिमेट समझ में आता है ना, मतलब गैस करना ये होगा कि नहीं, ठीक है। और जज, जज मतलब यहाँ पे वो नहीं है, मॉरल वैल्यूज का जज वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे ये है कि वो खाना टेस्टी है कि नहीं। तो उसी प्रकार में हम लोग ये मतलब लेके आते हैं ये सब, ठीक है। ओके, तो ये जो टेस्ट मतलब जो टंग है, यहाँ पे हम लोग का टंग पे क्या मिलेगा? यहाँ पे टेस्ट बड्स मिलता है। 10,000 से ज्यादा हम लोग को मतलब टेस्ट बड्स मिलता है, जो सब जगहों पे फैला हुआ है, ये। और दूसरा दूसरा जगह में दूसरा दूसरा टेस्ट मिलेगा, ठीक है। समझ में आया ये वाला पोर्शन? हाँ, Yes, ma'am. ओके ओके। next is papilla of tongue. So in papilla of the tongue, you will find that it is divided into two parts: circumvallate papilla and fungiform papilla. This one, circumvallate papilla, you will find here at the upper portion, and fungiform papilla you will find at the downside of this portion. Okay, so this papilla, it, so this papilla, where will you find? You will find here. Sorry, this circumvallate papilla you will find here. That is the upper portion. It is large and round. They are large and they are round. They are at the top of the tongue. Yes, and they are at the top of the tongue. And fungiform papilla, where will you find? You will find here. That is at the lower side. And you will find that they are small. Compared to circumvallate, you will find that they are small. And you will find that they are numerous. Numerous means what? They are very, I mean, very large in number. Understand? तो ये जो पेपिला है हम लोग का जिब्बा में होता है, तो ये जो पेपिला है ये थोड़ा थोड़ा गोल गोल मिलता है, ठीक है। सर्कमविलेट पेपिला ऊपर पे मिलेगा, थोड़ा बड़ा है दिखने में, सर्कमविलेट पेपिला बोलते हैं इसको। और नीचे में जो पोर्शन है उसको बोलते हैं फंगिफॉर्म पेपिला, ठीक है, जो नीचे पार्ट में हम लोग को मिलता है। तो ये फंगिफॉर्म पेपिला क्या है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है और हम लोग के जिब्बा पे मिलता है, क्योंकि हम लोग का जिब्बा में मिलता है, जो बहुत सारा है। न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारा मिलेगा। सर्कमविलेट थोड़ा बड़ा है फंगिफॉर्म से कंपेयर कर अगर करें तो, ठीक है। समझ में आया दिस वन एवरीवन? समझ में आया ये पोर्शन एवरीवन? से सुन। Yes, ma'am. Okay. Next is gustatory cells. So gustatory cells, where will you find? Gustatory cells you will find here, that is in the circumvallate papilla. Okay, circumvallate papilla. Where will you find? You will find in the upper portion of your tongue. Huh? So gustatory cells you will find. So gustatory cells, they helps you in what? They helps you in dissolving.
dissolving all the chemicals. Okay, dissolving all the chemicals, whatever like you are eating, they as soon as you will take a bite or something like that, they will dissolve it with the help of the gustatory cells. Okay, they are the part of epithelial cells. This gustatory cells. तो ये जो गस्टेटरी सेल्स हैं हम लोगों का कैसे मदद करता है, ये जो गस्टेटरी सेल्स है ना, ये सर्कमविलेट पेपिला पे मिलता है। ठीक है, सर्कमविलेट पेपिला बोलते हैं उसको, जो ऊपर का जिब्बा पे मिलता है, थोड़ा थोड़ा गोल गोल में मिलेगा। ठीक है, और जब तुम लोग कुछ खाओगे, ठीक है, तब क्या होगा, जब तुम खाओगे ना तो डिजोल्व हो जाएगा, मतलब अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, डिजोल्व मतलब खींच के लेके जाना नीचे। ठीक है, खींच के, डिजोल्व का मतलब पता है ना, खींच के, एब्जॉर्प्शन पता है कि नहीं, पूरा अंदर खींचता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या डिजोल्व। ठीक है, तो ये एपिथेलियल सेल्स के हिस्से हैं, गस्टेटरी सेल्स। ठीक है, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, did you understand or not? Gustatory cells. Yes, ma'am. Okay. Okay, next is gustatory hairs. So inside the gustatory cells, you will find gustatory hairs. So these gustatory hairs, they are very small. I mean, they are like hairs, just like your hairs, na? They are like that. And you will find that they are very small. And what do? I mean, whenever you taste something, what will they do? They will go and send information, or else they will pass information to the brain. And what kind of information will they send? Like that means if you taste, I'm just saying one example, mithai, sweets. If you're having sweets, obviously your brain, I mean, as soon as you will taste that, these gustatory hairs, they will send information to your brain saying that, oh, I'm having some sweet thing, it's sweet. So that kind of information it will go and send. ठीक है, तो ये जो गस्टेटरी हेयर्स है, गस्टेटरी सेल्स के अंदर मिलता है, और ये कैसा है दिखने में, बहुत पतला होता है। ठीक है, और ये हम लोग का चूल का जैसा है। ठीक है, ये जो चूल है, चूल का जैसा है। और इसका काम क्या है, अगर तुम कुछ जलेबी खाओ या मिठाई खाओ, तो क्या होगा, जब तुम एज सुन एज चखोगे वो मिठाई, तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग, मतलब तुम्हारा जो ये गस्टेटरी हेयर्स है, वो इंफॉर्मेशन, मैसेज भेजेगा तुम्हारा ब्रेन को, तुम्हारा दिमाग को। क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या मैसेज भेजेगा, और मैं कुछ मीठा चीज खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो वो इंफॉर्मेशन पास करेगा ब्रेन को। ठीक है, समझ में आया गस्टेटरी हेयर्स के बारे में? मैम, समझ में आया ना हमीदा? ये मेनली मैम ब्रेन में आते हैं, नो मैम? हाँ हाँ, क्या ये मेनली ब्रेन में आते हैं टेस्ट को। ब्रेन में आते हैं मतलब? टेस्ट हाँ हाँ, हम रिपीट मैम। एक्चुअली क्या पूछ रही हो तुम, मुझे समझ में नहीं आया, तुम क्या पूछ रही हो? हम गस्टेटरी सिस्टम टू मैम रिपीट मैम। ओके ओके, आई रिपीट, मैं रिपीट करती हूँ। गस्टेटरी हेयर्स जो है, हम लोग गस्टेटरी सेल्स के अंदर मिलता है। ठीक है, गस्टेटरी सेल्स, सर्कमविलेट पेपिला मैंने बोला था ना, जो ऊपर में है, जिब्बा के ऊपर जो गोल गोल है, उसके अंदर हम लोग को गस्टेटरी सेल्स मिलता है। ठीक है, और गस्टेटरी सेल्स के अंदर फिर से गस्टेटरी हेयर्स मिलेगा। ठीक है, गस्टेटरी सेल्स मिलेगा। तो गस्टेटरी हेयर्स जो है हम लोगों का कैसे मदद करेगा, मतलब अगर कुछ तुम चखने से, मान लेना तुम मिर्ची खाया, भूत जलोकिया खाया है, ठीक है, तो जब तुम चखोगे वो भूत जलोकिया, मतलब वो चिली, तो तुम्हारा दिमाग में इंफॉर्मेशन भेज देगा कि ओ ये मतलब भूत जलोकिया खा रहा है, इसलिए ये बहुत स्पाइसी है, बहुत झाल है। ठीक है, तो तुम ऐसे समझ लोगे तुम, गस्टेटरी हेयर्स की मदद की वजह से यस पता मैम। चल जाएगा। समझ में आया अभी?
हमीदा? Yes, yes, ma'am. Okay, good. Okay, next is facial nerve. Facial nerve, I already taught you ना, cranial nerves, 12 pairs of cranial nerves मैंने सिखाया था ना nervous system पे, तो facial nerve भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है facial nerve है, हम लोग के जिब्बे के आगे पे मिलता है, थोड़ा साइड में। फेशियल नर्व जो सात सात नंबर का है, रोमन नंबर 8, you will find the facial nerve which is at the front of your tongue. Okay, it is not that much important, this portion. Okay, next is glossopharyngeal and vagus nerve. So this is the glossopharyngeal nerve which you will find at the 9th cranial nerve, and this is the vagus nerve which you will find at the 10th number. 10th is number. Okay, so both this nerve, that is the glossopharyngeal and the vagus nerve, what will they do? They help the taste buds. Okay, they help the taste buds so that they can get activated, or else means they work together with the taste buds. You can say like that. तो ये जो ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व है, ये आगे में मिलेगा। क्रेनियल नर्व जो सिखाया था ना, 9 और 10 नंबर पे मिलता है क्रेनियल नर्व्स का, ठीक है। और ये जो ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व जो है, हम लोग का जो टेस्ट बड्स है, वो लोग एक साथ काम करके वो करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ताकि कुछ चीजें अगर हम लोग चखने से उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ वो ये है वो, ठीक है। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? Okay, next is basal cells. So the basal cells, where will you find? You'll find here that is at the bottom part. At the bottom part of your cells, that is the 3 cells, no? Basal cells you will find in the taste pores, you will find here. So the basal cells are dynamic cells. Dynamic cells means explosive, you can say, very much, yeah, explosive. And the basal cells, you will find that they keep on changing after every 7 to 10 days. Okay, and they lie at the deeper part, at the deeper side of your taste bud, this portion. जो बेसल सेल्स जो है, वो लोग बहुत डायनेमिक सेल्स है, मतलब वो लोग बहुत जो काम कर रहे बहुत खास होता है, ऐसे समझ लो। और ये जो बेसल सेल्स है, हम लोग का जो टेस्ट बड्स है पूरा नीचे में होता है, अंदर में मिलता है। और ये जो बेसल सेल्स है 7 दिन से लेके 10 दिन तक वो लोग बदलते रहता है, ठीक है। तो जब 7 दिन और 10 दिन तक हो जाएगा, वो लोग फिर से बदलेंगे, ऐसा है, ठीक है। बेसल सेल्स समझ में आया सबको? Did you understand everyone? Basal cells. It means what? Means after every 7 or 10 days, na, your taste buds, they will grow again and again with the help of the basal cells. बेसल सेल्स के मदद की वजह से तुम लोग का जो टेस्ट बड्स है ना, जिब्बा में छोटा छोटा में मिलेगा, वो बदलते रहता है 7 दिन से 10 दिन तक, कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलते रहेगा, ठीक है। समझ में आया बेसल सेल्स? यस, हाँ, या someone is saying something. Hello. Okay, I hope you understood. Okay, next is the skin, that is a part of the sensory organs. Okay, so the skin, it is the part of your sensory organs, and you will find that there are 3 layers of the skin, that is epidermis, this one, dermis and hypodermis. Okay, so these are the 3 areas that you will find in the skin. जो स्किन है, जो चमड़ा है, वो हम लोग का सेंसरी सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन के हिस्से में होता है। और ये जो स्किन है, हम लोग 3 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। एक है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा है हाइपोडर्मिस, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो स्किन है, हम लोगों का कैसे मदद करता है?
जो केमिकल्स वगैरह होता है, जो बाहर का चीजें वगैरह वो सब होता है, वो सब चीजों में हम लोग का मदद करता है. So all these chemicals and environmental factors, na, all these things, I mean, the skin, it helps you in what to say, I mean, protecting. It helps you in protection from all these things. And also the skin helps you in what? Preventing dehydration. Preventing dehydration means what? Losing of your body fluids and electrolytes, na? It helps you in that. Dehydration का मतलब हम लोग का शरीर में electrolytes और पानी कम होना. ठीक है, तो ये जो चमड़ा है, हम लोग का स्किन है, हम लोग को डिहाइड्रेशन ना होने के लिए मदद करता है. नेक्स्ट क्या है? एक्टिंग एज ए सेंसरी ऑर्गन. मतलब हम लोग जब सेंस करते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन, तो ये जो सेंसरी ऑर्गन जो है हम लोग का उस तरीके से मदद करता है. मतलब हम लोग महसूस कर सकते हैं कि नहीं, अगर कोई तुम्हारा हाथ ऐसे छूने से भी तुम लोग को पता चल जाएगा, उसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन. तुम्हारा स्किन जो है तो ऐसे ही पता चल जाएगा तुम लोग को. नेक्स्ट है मॉड्यूलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. मतलब तुम्हारा शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है, ठीक है, गर्मी ठंडा वगैरह, वो सब जो मेंटेनेंस रखने में मदद करता है. और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटाशियम, वो सब ना इलेक्ट्रोलाइट जो है, सोडियम क्लोराइड वगैरह, वो सब बैलेंस करने में मदद करता है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स. अंडरस्टैंड? एंड एज वेल एज सिंथेसाइजिंग विटामिन डी. विटामिन डी भी हम लोग को ये स्किन देता है. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Okay, next is the skin also protects you from different chemicals. I already discussed about this. I won't repeat again. From water, from all this sunlight, all these things, it helps you. The skin, it helps you. And next is sensory function. How does the skin helps you in sensing something? तुम्हारा जो स्किन है, तुम लोगों को कुछ महसूस, मतलब कुछ बतला हुआ महसूस होने में कैसे मदद करता है, उसका कारण क्या है, वो अभी मैं बोलूंगी. ओके, ये हेयर फॉलिकल दिख रहा है तुम लोग को? कैन यू सी दिस हेयर फॉलिकल, दिस पोर्शन? यस एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ. Okay, so this hair follicle, just downside of the hair follicle, you will find nerve. Understand? So this nerve, what will they do? The nerve with the help, because they are connecting, they are connected. That's why if suppose, say for example, if an insect or anything, it crawls here. Understand? It crawls here. So it will automatically, you will be able to know it automatically with the help of this hair follicle, sorry, with the help of this hair follicle, because it is connected with the nerve. Your nerves are there, smell it. So that's why you will be able to just know it with the help of this hair follicle. It's like touch, also you will be able to know it. तो ये जो स्किन है, हम लोगों को कैसे मदद करता है, मतलब कुछ अगर स्लाइट थोड़ा सा हल्का सा चीजें हम लोग अगर छूने से भी कैसे पता चलेगा तुम्हें? ये जो हेयर फॉलिकल है, उसके अंदर में हम लोग को नर्व मिलता है. ठीक है, ये नर्व और ये जो हेयर फॉलिकल है, वो लोग एक साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो उसके वजह से या उसके कारण हम लोग को पता चल जाएगा कि मतलब हम मतलब मुझे किसी ने छुआ है या कुछ चीजें मुझे छू रहा है, ऐसे मतलब समझ में आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया ये पोर्शन, सेंसरी फंक्शन? हाँ, समझ में आया, हाँ या ना? Yes, ma'am. Okay. Okay, next is layers of the skin. So same thing. Layers of the skin, you will find epidermis, dermis, hypodermis. Layers of the skin हम लोग को एपिडर्मिस सबसे ऊपर में मिलेगा, डर्मिस मिडिल, हाइपोडर्मिस लास्ट में मिलेगा. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे नर्व्स होता है, और हम लोग को कुछ छूने से भी पता चल जाएगा, टेम्परेचर और कुछ
मतलब दर्द वगैरह वो सब होने से भी पता चल जाएगा, ठीक है। Okay, so what are the corpuscles that you will find in the sensory organs? That is in the skin. That is only 5 minutes left. I'll do soon, huh? Here, imaginary corpuscles and fascinal corpuscles. Imaginary corpuscles, it is also known as tactile corpuscles. So, imaginary corpuscles like light touch. Suppose if cotton, you place a cotton near your skin. So that slight touch also you will be able to know it with the help of imaginary corpuscles. That is also known as tactile corpuscles. Fascinant corpuscles, this portion. How will you? It is also known as lamellate corpuscles. Like slight vibration, na? Vibration in the sense like little bit vibration. If you feel also like you, if it will be there also, you will be able to feel it with the help of this fascinant corpuscle, which is also known as lamellate corpuscles. Understand? तो ये जो corpuscles है, मेशनर corpuscles और fascinant corpuscles जो है, मेशनर corpuscles उसको tactile corpuscles बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ अगर चीजें तुम्हें छूने से भी पता चल जाएगा तुम्हें मेशनर corpuscles की मदद के द्वारा। और पेसिनल corpuscle जो है उसको बोलते हैं लैमिलेट corpuscle, जो यहाँ पे मिलता है डर्मिस पोर्शन में। तो ये थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा, ये महसूस हो जाएगा, ठीक है। पेसिनल corpuscles यहाँ पे डर्मिस में मिलेगा, मेसिनल corpuscles एपिडर्मिस में। ठीक है, समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. And the skin also helps you in thermoregulation, means it helps you in what temperature, maintaining the temperature. So inside the brain you have hypothalamus, na? So the hypothalamus, they will control your body temperature. How? By opening and closing your sweat glands. Understand? तो स्किन हम लोगों का कैसे मदद करता है? हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन दिमाग पे मिलता है, तो हाइपोथैलेमस हम लोग का बॉडी टेम्परेचर पूरा कंट्रोल करता है। कैसे? हम लोग का जो स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स होता है वो कभी कभी ओपन मतलब खुला करता है, फिर से बंद करता है, तो उस तरीके से ये थर्मो रेगुलेशन होता है, मतलब जो टेम्परेचर है हम लोग का मेंटेन करता है। ठीक है, समझ में आया? Did you understand, everyone? Okay, so here I have completed all my portion. Okay.